Hello everyone, my name is Onish Singh. Moving forward to this series, last video we have talked about some data types of Python like int, bool, float, complex data. Moving forward to that, today we are going to talk about string method. String data type, and if I define the string data type, any sequence of character enclosed with single or double quotes called as string. Here you can see this string is enclosed with double quotes and it is inside a variable u, so it is a string. And here you can see this string is enclosed inside a single quotes, so this is also a string. Any sequence of character enclosed with single or double quotes is called as a string. But in Python, single quotes is recommended. You can use double quotes or single quotes both, but single quote is recommended. But here you can see you have defined a string in a single line. Both the strings are in single line. If you want to define a string in multiple lines, you have to use triple single quotes or triple double quotes at the start as well as at the end, like this. You can see here x is equal to I have used triple quotes, this is next gen, and at the end I have again used triple single quote. I'll show you with a program. I have already written all the related programs in this file, so it will save our time. If I save this is the next one. Here you can see info is a variable. I have written a multiple line string with triple double quotes. I can use triple single quote here as well, but I have used triple double quotes and I just print it. Here you can see if you want to print a string which consists of a single quotes as well. If you see the output of this, I'll show you the output. Hello everyone, welcome to Python's world. If you see here, I have declared a variable welcome, and inside that I have used double quotes to write a string, and inside that double quotes I have used a single quote to describe a string literal, and that quote is print here. Moving forward, we are going to talk about string methods. This is very important. Let me show that in the whole Python series, string method are going to be used. So give it your best to string methods. Python has a set of built-in methods that you can use on strings. I have show you 18 methods, but I make you sure that there are many more. But these 18 are very important methods. If you know these methods, it will be very helpful for your programs, and these are very important for you. First, I have used a center method. This method will make your string to center. It can take two parameters, width and symbol. ये मेथड आपके स्ट्रिंग को सेंटर में फिक्स कर देगा, और ये दो पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं आप इसमें, एक तो विड्थ, दूसरा सिंबल। विड्थ पैरामीटर के थ्रू आप
अगर मैंने यहाँ पे सेंटर का प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नेम, इसके अंदर लिखा है पाइथन डेटा टाइप्स जो कि एक स्ट्रिंग है। मैंने सेंटर मेथड को नेम के थ्रू कॉल, नेम अपने वेरिएबल को सेंटर मेथड के थ्रू कॉल किया है। यहाँ पे 60 ये जो है ये विड्थ है, और हैज़ मैंने सिंबल यूज किया है फॉर फॉर्मेटिंग, जिससे अच्छा दिखे, इसके लिए मैंने हैज़ यहाँ पे यूज किया है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा। इस तरह की चीज़ें मार्कशीट का प्रोग्राम आप करोगे, मार्कशीट बनाने का, तो उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए इस तरह की चीज़ें यूज होती हैं। तो आप आसानी से सेंटर मेथड यूज करके फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 60 की विड्थ पे हैज़ यूज हुआ है, राइट साइड में 60 की विड्थ पे हैज़ यूज हुआ होगा, और ये अलग अलग मॉनिटर्स की स्क्रीन पे अलग अलग तरह से शो होगा। Moving forward to that, I'd like to tell you two more methods which are related to center. One is rjust, another is ljust. rjust method will right justify your string, and ljust method will left justify your string. Here in center method will justify your string to both right and left, but if you want to explicitly justify your string left and right, then you can use rjust and ljust. I'll show you with this program. If I save this and run this, you can see here I have declared a variable m where I have stored artificial intelligence string. Then I have used rjust method of string, and I have given the width 40 and a symbol dash I have used. Then I have printed r. Then you can see it has justified from the right side. It has justified from the right side, and in this, if I have used ljust, then it has justified my string to the left. So these formatting are going to be very useful in your programs, so give it more focus on that. Moving forward, I'm going to talk the very important method, which is count. This method returns the number of occurrence of a substring in a string. If I show you with this program, here I have declared a variable name where I have stored machine learning string. Okay, then I have print this, and I have used count, and I have given a parameter a. मैं आपको बताना चाहूँगा ये पैरामीटर a काउंट मेथड के थ्रू इस स्ट्रिंग में a सर्च करेगा, और ये सर्चिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा। से पहले ये फर्स्ट कैरेक्टर m को सर्च करेगा, फिर a को सर्च करेगा, फिर CHIN। जैसे ही इसको पहली बार a यहाँ पे मिल जाएगा, ये उसकी इंडेक्स इसको बता देगा, पोजीशन उसको बता देगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, 2 ये 2 आउटपुट आप समझ सकते हो। मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें एक स्ट्रिंग दिया। इसमें मैंने बोला कि ए वर्ड को की पोजीशन फाइंड करो। काउंट मेथड हम पोजीशन उस स्ट्रिंग में पहली बार जब ए का ऑकरेंस हुआ, पहली बार जब ए आया तो उसकी पोजीशन फाइंड करो। तो इसके लिए मैंने काउंट मेथड चलाया, तो पहली बार ए सेकंड पोजीशन पे फाउंड हुआ तो इसने सेकंड पोजीशन राइट कर दिया। आई होप काउंट मेथड आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं फाइंड मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग इज फाउंड एंड रिटर्न -1 ऑन फेलियर। ये भी कुछ काउंट जैसा ही है, बट ये लोएस्ट इंडेक्स को प्रिंट करता है। तो मैंने ये प्रोग्राम के थ्रू मैंने इसको समझाया है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, इसमें मैंने एक यूजर से एक स्ट्रिंग इंटर करने के लिए बोला। मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया सब नेम, उसमें से यूजर से बोला कि उस स्ट्रिंग का कोई सब स्ट्रिंग लिखो। सब स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग का कोई छोटा पार्ट। फिर मैंने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया, फिर फाइंड मेथड को अपने नेम वेरिएबल के साथ चलाया और फाइंड मेथड के अंदर सब नेम पास किया। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। हमने बोला कि नेम वेरिएबल में जिसमें एक स्ट्रिंग रखी हुई है, उसमें से आप फाइंड करो सब नेम जो मैं उसमें दूंगा बाद में। आप नेम वेरिएबल में से सब नेम को फाइंड करके मुझे बताओ। तो मैंने इसको प्रिंट किया है एक फॉर्मेटेड वे में। मैं इसको रन करता हूँ। आपसे पूछेगा एक स्ट्रिंग लिखिए, तो मैं लिखता हूँ पाइथन। अब आपसे इस स्ट्रिंग में से कोई एक सब स्ट्रिंग लिखने को बोलेगा। आप चाहे तो इस स्ट्रिंग में से ही लिखो या फिर कोई भी एक सब स्ट्रिंग लिखो, वो आपको रिजल्ट देगा। मैंने ओ लिखा, तो ये मुझे अब इसकी पोजीशन बताएगा। 0 इज फाउंड एट 4। O is found at 4 means P, I'll show you how। P की इंडेक्स 0 है, Y की इंडेक्स 1 है, T की इंडेक्स 2 है, H की इंडेक्स 3 है, O की इंडेक्स 4 है। ये हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहा है कि पहली बार O किस इंडेक्स पे पाया गया। तो O की इंडेक्स यहाँ पे 4 है। मैंने पहले ही बताया पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 और 4th पोजीशन पे सर्च करने पे ये O को पा गया, तो इसने O की पोजीशन को 4 रिटर्न किया। मूविंग फॉरवर्ड, R फाइंड सिमिलर टू फाइंड बट रिटर्न द हाईएस्ट इंडेक्स। ये R की फाइंड के मेथड के जैसा ही है, बट ये हाईएस्ट इंडेक्स को रिटर्न करेगा। जैसा कि मैंने फाइंड के बारे में आपको बताया, अगर आप कोई सब स्ट्रिंग इसमें प्रिंट कर रहे हो और वो सब स्ट्रिंग आपके इंटर स्ट्रिंग में नहीं है, तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा, जो मैं आपको आउटपुट के थ्रू दिखाता हूँ। मैंने पाइथन लिखा। अब मुझे ये सब स्ट्रिंग लिखने को बोल रहा है और मैं एक ऐसी सब स्ट्रिंग लिखूंगा जो इसमें होगी ही नहीं। जैसे कि ए लिखता हूँ, ए इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो ये मुझे -1 रिटर्न करेगा। ये इसकी क्वालिटी है। ये मुझे कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा। अगर इससे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपके में एरर नहीं आएगी। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है फाइंड की। आगे बढ़ते हैं। अपर, लोअर और स्वैप केस, ये तीनों मेथड को मैं एक साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सिंपल मेथड है। अपर मेथड सिंपली आपके स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर मेथड सिंपली आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। स्वैप केस होता है, अगर आपकी स्ट्रिंग अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपकी दी हुई स्ट्रिंग लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू इसको शो करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूजर से इंटर कराया है।
वो स्ट्रिंग किसी भी केस में होगी तो उस केस को स्वैप केस स्वैप कर देगा। स्वैप करने का मीन्स है कि वो अपर केस में है तो अपर लोअर केस में कर देगा, लोअर केस में है तो अपर केस में कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ मशीन लर्निंग। ये मेरी स्ट्रिंग लोअर केस में है, ये देखिए मैंने जैसे ही इंटर किया ये मेरी स्ट्रिंग अपर केस में हो गई। तो स्वैप केस के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा, ये बहुत सिंपल है, इसको कोई भी समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में बात करते हैं पाइथन के, स्ट्रिंग के। इंडेक्स मेथड इज सिमिलर टू फाइंड बट रिटर्न एरर इफ सर्च नॉट फाउंड। इसका मतलब है जैसे अभी मैंने फाइंड मेथड के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे जब मैं कोई स्ट्रिंग डालता था और उससे कोई सब स्ट्रिंग सर्च करता था उस स्ट्रिंग में, अगर वो स्ट्रिंग मुझे नहीं मिलती थी तो मुझे -1 रिटर्न करता था। लेकिन अगर आप इंडेक्स मेथड यूज करोगे और वो स्ट्रिंग आपको नहीं मिली, जो सब स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हो आपकी स्ट्रिंग में, अगर वो नहीं मिली तो ये मुझे एक एरर शो करेगा। मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, सेम प्रोग्राम है, बस मैंने यहाँ पे फाइंड की जगह इंडेक्स मेथड यूज किया है। मैं इसको रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ मशीन लर्निंग। अब इस सब स्ट्रिंग में मैं एक ऐसी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में मैं एक ऐसी सब स्ट्रिंग ढूंढता हूं जो इसमें ना हो। अगर होगी तो उसका इंडेक्स पोजीशन मुझे दे देगा। पहले मैं किसी स्ट्रिंग को लिखता हूं जो है इसमें L, तो ये मुझे इसकी पोजीशन बता दिया 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं फिर से इसको रन करता हूं और इस बार ऐसा इनपुट दूंगा जो इसमें है ही नहीं, Z। देखिए यही फाइंड और इंडेक्स में यही डिफरेंस है। फाइंड में अगर मैं इस प्रोग्राम को किया होता फाइंड मेथड के थ्रू तो ये मुझे -1 रिटर्न करता, लेकिन मैंने इंडेक्स मेथड के थ्रू किया तो ये मुझे एरर रिटर्न किया। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिप मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इट विल रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस आर रिमूव्ड। अगर आपने कोई स्ट्रिंग दिया है, ओके, स्ट्रिप और एल स्ट्रिप दोनों मेथड है, मैं इसको समझाता हूँ। अगर आपने कोई स्ट्रिंग दिया, उसमें लीडिंग साइड एंड ट्रेलिंग साइड मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन पे आपने स्पेसेस दिए हुए हैं, जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हो। मैंने एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया और उसमें स्टार्टिंग में मैंने इतने ब्लैंक स्पेसेस दिए और एंड में मैंने बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस दिए। तो स्ट्रिप मेथड मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर देगा। अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसके सभी स्टार्टिंग और एंडिंग ब्लैंक स्पेसेस रिमूव हो जाएं, तो आप स्ट्रिप मेथड यूज कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड के ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना है तो आप एल स्ट्रिप यूज कर सकते हो। जैसा कि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं किस तरह हुआ। मैंने एक वेरिएबल बनाया सब्जेक्ट नाम का जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग दिया और राइट एंड लेफ्ट साइड में ब्लैंक स्पेसेस भी दिए उसके। तो मैं यहीं पे इसको एक बार प्रिंट करके भी आपको शो करता हूँ किस तरह ये प्रिंट होता अगर हमने एल स्ट्रिप और स्ट्रिप ना यूज किया होता।
अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने एल स्ट्रिप नहीं यूज किया होता या फिर स्ट्रिप मेथड नहीं यूज किया होता तो मेरा स्ट्रिंग कुछ इस तरह प्रिंट होता। इसमें देखिए आप, यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्पेसेस हैं और राइट साइड में भी स्पेसेस हैं, बट इसमें लेफ्ट और राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर दिया है। यहाँ पे एक मैंने मेथड यूज किया है लेन। ये मेथड भी स्ट्रिंग का मेथड है जो मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक। लेन मेथड आपके स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। इस टेंसर फ्लो में जो मैंने लिखा है इसमें 10, इसकी लेंथ 10 है, तो इसने मुझे इसका रिजल्ट 10 प्रिंट किया है। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल स्ट्रिप ये सिर्फ लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करेगा, राइट साइड के ब्लैंक स्पेसेस को वैसे ही रहने देगा। अब आगे बढ़ते हैं, ज्वाइन मेथड की बात करते हैं। ज्वाइन मेथड इट ज्वाइंस द एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये बात आपको पढ़ के नहीं समझ में आ सकती, हो सकता है, बट मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को करता हूं, देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें एक स्ट्रिंग को स्टोर किया, फिर एक नया वेरिएबल लिया और उसमें मैंने ए, ये जो कि एक कैरेक्टर है, इसको ज्वाइन कर दिया। मैंने बोला कि मेरे डेटा जिसमें पाइथन स्टोर है उसमें ए को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर हैं सबके साथ इस ए को ज्वाइन कर देगा। ये मैं आपको आउटपुट के थ्रू दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। आप देखिए इसने क्या किया है। ये स्ट्रिंग थी मेरी पाइथन, मैंने इसमें ज्वाइन मेथड चलाया तो ज्वाइन मेथड ने ए को पी के साथ पहले ज्वाइन किया, फिर वाई के साथ ज्वाइन किया, फिर टी के साथ ज्वाइन किया, फिर एच के साथ ज्वाइन किया, फिर ओ के साथ ज्वाइन किया और लास्ट वाले के साथ लास्ट के कैरेक्टर को सेम वैसे ही प्रिंट किया। तो ज्वाइन मेथड बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आप इस तरह करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट मेथड के बारे में बात करना चाहता हूं। स्प्लिट मेथड मेरी नज़रों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्ट्रिंग का। दिस स्ट्रिंग मेथड विल डिवाइड द कैरेक्टर्स फ्रॉम वेयर यू हैव स्प्लिटेड इट। आप जहां से इस मेथड को, आपको पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ से आप स्प्लिट मेथड को डिफाइन करना चाहते हैं, वहाँ से उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको ये मेथड यूजफुल होने वाला है। इस मेथड के थ्रू आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को कम लाइन में कर सकते हैं। पाइथन का मेन एम भी यही है कि लाइन ऑफ कोड को कम करना। तो ये स्प्लिट मेथड बहुत यूजफुल है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो यहाँ इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके लिए। अगर आप किसी फाइल का पाथ देते हो, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे फाइल के बहुत सारे पाथ्स देते हो, अगर उस पाथ में से आपको फाइल का नेम प्रिंट करना हो तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो? आपके पास आपको एक टास्क है, आप एक प्रोग्राम करो जिसमें किसी फाइल का पूरा पाथ लिखा हो और उस पाथ में से सिर्फ आपको फाइल का नेम प्रिंट करना हो। तो ये प्रोग्राम आप कैसे करोगे?
ये पाइथन में ये 3 लाइन के प्रोग्राम हैं, 3 लाइन के कोड से आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। और किसी लैंग्वेजेस में ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि आप 3 लाइन में ये प्रोग्राम कर सको। मैंने पाथ दिया, पाथ नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें यूजर से एक पाथ पूछा, वो यूजर यहाँ पे पाथ इंटर करेगा, फिर मैंने उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया और मैंने इस पाथ के साथ स्प्लिट मेथड बनाया और मैंने बोला कि जहाँ पे मैं बैकवर्ड स्लैश लगाऊंगा, जहाँ पे मैं ये स्लैश लगाऊंगा और वहाँ से मेरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दे। और -1 ये जो मैंने लिखा है इसके बारे में आपको आगे चल के बहुत बताएंगे बातें। ये -1 पाइथन के बारे में अभी आप एक बात जान लो कि पाइथन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, मतलब आप आगे फॉरवर्ड साइड से आगे से पीछे तक भी जा सकते हो इंडेक्सेस को आइडेंटिफाई करते हुए, और पीछे से आगे साइड में भी आ सकते हो इंडेक्सेस को। -1 का मीन्स होता है कि लास्ट इंडेक्स जो आपकी है, वो जो लास्ट इंडेक्स होती है वो -1 होती है। अभी इसके बारे में बहुत सारी और बातें करेंगे आगे इंडेक्सिंग के बारे में, बट फिर मैंने यहाँ पे उस रिजल्ट को स्टोर किया। अभी प्रोग्राम आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक फाइल का पाथ दूंगा, कुछ इस तरह का पाथ हम अपनी फाइल का देते हैं। मैंने अपने फाइल का नाम test.txt टाइप का फाइल है जिसका नाम टेस्ट है। Here you can see फाइल नेम इज test.txt। इस पाथ की, ये जो मैंने पाथ दिया था इसमें फाइल का नाम ये है, तो इसने मुझे सिर्फ फाइल नेम प्रिंट किया। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। स्प्लिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस मेथड को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। आर स्प्लिट स्कैन्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द एंड, ये एंड से स्ट्रिंग को स्कैन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले मेथड के बारे में जिसका नाम है इज डिजिट। दिस मेथड विल रिटर्न ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स, अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब है कि ये मेथड, मैं आपको प्रोग्राम में लाता हूं। इस डिजिट मेथड से मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस डिजिट मेथड का मतलब होता है कि अगर मैं इनपुट मेथड के थ्रू किसी नंबर को प्रिंट कर रहा हूं तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर ले। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था इनपुट मेथड स्ट्रिंग को स्टोर करता है। अगर मैं इनपुट मेथड यूज कर रहा हूं और मैं यहाँ पे नंबर राइट करूँगा तो आगे चल के प्रोग्राम में एरर आएगी, लेकिन अगर मैं इसको इस डिजिट मेथड के थ्रू करूँ तो फिर मैं मेरे इस इनपुट मेथड को वो एक नंबर के रूप में लेगा। मैं इस प्रोग्राम में आप रन करना चाहूँगा। इसमें मैंने ये टेस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, एक इनपुट दिया है, आप कुछ भी लिखिए। फिर मैंने टेस्ट डॉट इस डिजिट मेथड चलाया है। टेस्ट डॉट इस डिजिट का मतलब है कि टेस्ट में जो कुछ लिखा है ये एक डिजिट है या नहीं, इसको चेक करना है। अगर ये डिजिट है तो वो प्रिंट करेगा इज ए नंबर, और डिजिट नहीं है तो इसको इनवैलिड इनपुट प्रिंट करेगा। इस डिजिट मेथड चेक करता है कि मैंने जो भी इनपुट दिया हुआ है वो डिजिट में है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ ABCD, ये जो कि एक स्ट्रिंग है, तो ये इसने बोला इनवैलिड इनपुट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर इंटर करता हूँ 1 2 3 4, इट इज़ ए नंबर। तो इस तरह से आप इनपुट मेथड यूज करके यहाँ पे इंटीजर्स को अपने इनपुट मेथड को यूज करके
आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ORD मेथड की बात करते हैं। दिस मेथड विल रिटर्न द ASCII कोड फॉर द गिवन कैरेक्टर। साथ ही साथ CHR मेथड की बात भी करते हैं। दिस मेथड विल रिटर्न कैरेक्टर फ्रॉम द ASCII कोड। आपने ASCII कोड के बारे में सुना ही होगा। अगर आप किसी कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं और उसका ASCII कोड चाहते हैं तो ORD मेथड हम यूज करेंगे, और अगर आप किसी ASCII कोड को दे के उसका कैरेक्टर पता करना चाहते हैं तो आप CHR मेथड यूज करेंगे। अब मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने, और दोनों मेथड मैं एक साथ रन करूँगा। मैंने यहाँ पे ORD मेथड यूज किया है और मैंने एक कैरेक्टर दिया है। अब इस कैरेक्टर का मुझे ASCII कोड ये रिटर्न करेगा, कैपिटल A का। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर कैपिटल A दिया हुआ है और दूसरे प्रोग्राम में मैंने एक ASCII कोड दिया हुआ है। ये एक ASCII कोड है और इसका कैरेक्टर मैंने प्रिंट करने के लिए बोला है। तो ये बहुत ही आसान है पाइथन में, एक एक लाइन का। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, मैंने पहला प्रोग्राम जब किया, इसमें प्रिंट किया मैंने ऑर्डर को, और ये कैपिटल A। इसका ASCII कोड होता है 65। कैपिटल A से कैपिटल Z तक का ASCII कोड 65 to 90 होता है, और 97 से 121 तक ASCII कोड स्मॉल a to Z होता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, कैपिटल A का 65 है, 97 का A है, 121 लिखता हूँ यहाँ पे। Y 122, ये देखिए। तो अगर आपको किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड चाहिए तो आप ORD मेथड यूज करो, और किसी ASCII कोड का कैरेक्टर चाहिए तो आप CHR मेथड को यूज करो। स्ट्रिंग मेथड में हम बस इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिस्ट और टपल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पाइथन में तीन डेटा टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है, str, लिस्ट और टपल। str के बारे में मैंने यहाँ बात कर ली है, लिस्ट और टपल के बारे में मैं आगे के वीडियो में बात कर लूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।